Today we will start our second topic of our second chapter, that is load the program. Before this we studied about how to save a program, create a program, and we studied about different IDEs of GW Basic. So today's topic is load the program. Loading the program refers to bring it into memory from secondary storage devices such as hard disk so that it can be used. A safe program can be loaded by using the following procedure. Okay, so F3 key is basically used to load the program. Type the name of an existing file. You can do the loading of the program by following three steps, or by using a shortcut key of F3, or you can simply write the word load, or type the word by using keyboard load, and you will name the file for which you want to load a program, and press the enter key. Okay, if the file does not exit in an invalid path is type, an error message is displayed. So if the file you are entering, or if the name of the file you are entering does not exist, or you are entering an invalid path, so there will be an error message that will say that the file does not found. The default extension of GW basic program is .bas. अब वो default extension क्या होती है, जैसे Microsoft Word की होती है .doc, doc होती है, एक्सेल की .xls होती है, पावर पॉइंट की .ppt होती है, डेटाबेस की .mdb होती है. तो ये सेम इसी तरह GW बेसिक की जो एक्सटेंशन है वो .bas है. To save a file in a directory, you should specify the complete path with a file name, otherwise the file will be saved in the current working directory of GW basic. वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी फाइल को सेव करना है तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा फाइल के नाम के साथ कि कहाँ पर आपने अपनी फाइल को सेव करना है. अदरवाइज जो आपकी फाइल होगी वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, मतलब जो डायरेक्टरी आपकी चल रही है, सी चल रही है, डी चल रही है, जो भी ड्राइव आपने ओपन की हुई है वहां पर आपकी फाइल जाकर सेव हो जाएगी. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम. Execution of the program refers to carrying out instructions of the program. The program must be loaded into memory RAM before execution. Therefore, to execute a program, first load it as described above. Then press F2 key or type run command. The output of the program will follow it. Now they are saying that how you can execute a simple program, and execution of the program is generally referred as the as to start the instructions or to carry out the instructions of the program. Once you have written the program, you have loaded the program into the memory, then you need to execute that program for your desired output. So you can see the example over here in figure 2.4. Let x is equal to 10 and let y is equal to 20. There are two variables, one is x that is equal to 10 and one is y that is equal to 20. So 10 and 20, these are two variables. Suppose they are supposing that there are two variables. In line number 20, they are printing the sum of these both variables. Print sum, that is x plus y. X में value 10 है, y की value 20 है, and they are adding both of these variables. नंबर 30 एंड, मतलब आपका प्रोग्राम जो टर्मिनेट कर रहा है. सेव किया, सबसे पहले उसने सेव की लिखा, टाइप किया कीबोर्ड से सेव, और कहाँ पे सेव करना है, दे हैव गिवन द प्रॉपर पाथ, दे हैव गिवन द ड्राइव फॉर विच फ्रॉम विच दे वांट टू सेव द फाइल. सो सी ड्राइव में वो सेव करना चाहता है, और किस नाम से सेव करना चाहता है, सम के नाम से सेव करना चाहता है. डॉट एक्सटेंशन जो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया कि GW बेसिक की डिफॉल्ट एक्सटेंशन .bas होती है, तो सम के आगे उसने .bas लिखा ताकि so that the system will recognize that the file of sum is of GW basic. Okay, so the program has been saved. Now see the figure number 2.5. ओके लोड. अब वो क्या करते हैं, मेमोरी में लोड कर रहे हैं. कौन सी चीज को लोड कर रहे हैं, अब उसने फिर पाथ दिया और फाइल का नाम दिया. सी ड्राइव में आपकी एक फाइल पड़ी हुई है सम के नाम से, sum.bas उसकी नाम है. इसको आपने लोड करना है. तो जब ये मेमोरी में आपने लोड की और आपने उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन किया, F4 प्रेस करोगे, आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट कर देगा. तो फिर यू कैन सी द आउटपुट दैट सम इज इक्वल टू 30. सो जो आपका यहाँ पर आपका फॉर्मूला आपने लगाया था सम दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो उसका जो आंसर है 30 वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. Okay, so this is the basic process of creating and saving a program and loading and running the program, or you might say executing the program. Next topic is topic number 2.4, and it is one of the most important topic of this chapter, that is structure of the basic program, that how you can write a basic program. Sorry.
Page number 15. Structure of the basic program. एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. अब वो कहते हैं कि हर बेसिक प्रोग्राम को जो कि आप लिखना चाह रहे हो दैट शुड फॉलो द सर्टेन सेट ऑफ रूल्स. नंबर वन, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर. हर प्रोग्राम की स्टेटमेंट को आपने लाइन नंबर से स्टार्ट करना है. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, यू माइट यूज 10 20 30 40 50 का फॉर्मेट यूज कर सकते हो. यू माइट यूज 5 10 15 20 25 30 35 इस तरह भी कर सकते हो. सो द सीक्वेंस यू आर फॉलोइंग शुड बी ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सीक्वेंस. ओके, 1 2 3 भी कर सकते हो आप, क्योंकि बराबर का सीक्वेंस आ रहा है, वन वन डिजिट का सीक्वेंस आ रहा है, तो जो सीक्वेंस आपने रखना है वो इक्वल रखना है. So it is mandatory to write the line number for writing the program statements. Second point, it is a good practice to end every basic program with an end statement. However, it is not mandatory. वो कहते हैं कि ये गुड प्रैक्टिस है कि आपने जब भी अपना प्रोग्राम एंड करना है तो आपने एंड की स्टेटमेंट लिखनी है, END. यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ऊपर फिगर नंबर 2.4 है, यहाँ पर लाइन नंबर 30 में उसने एंड का वर्ड यूज किया है. उसने अपना प्रोग्राम खत्म किया इसलिए उसने यहाँ एंड लिखा, ताकि सिस्टम समझ जाए और आज जो यूजर है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है वो एंड कर जाता है, इसके आगे कोई और स्टेटमेंट नहीं है. तो दैट इज वाई वो कहते हैं कि जो एंड की स्टेटमेंट है, इट इज फॉर राइट टू राइट एन एंड स्टेटमेंट, इट इज अ गुड प्रैक्टिस दैट यू शुड राइट एन एंड स्टेटमेंट. हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी. मतलब लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लिखें, मगर आप लिखते हो तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर्स विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड. आपने अपने प्रोग्राम के लाइन नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते. इट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट अलाउड टू रिपीट द लाइन नंबर्स विद इन योर प्रोग्राम. ये नहीं है कि लाइन नंबर 10 पे आपने कोई चीज लिखी, उसके बाद नीचे आकर फिर लाइन नंबर 10 लिख दिया. ऐसा नहीं हो सकता. ओनली वन लाइन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. वन लाइन नंबर यूज किया, उस पर एक ही स्टेटमेंट आएगी. Next is point number 4. Two or more statements can be written on a line, but they must be separated by a colon. वो कहते हैं एक लाइन के अंदर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हो. Two or more statements can be written on a single line, but they must be separated by the sign of colon. Colon के साइन से आपने उसे सेपरेट करना है. You can see over here in line number, in line number 10 they have written two statements. They have, first of all they have supposed the value x that is equal to 10, और उसके बाद ये कॉलन का साइन आपको नजर आ रहा होगा, और उसके बाद उसने लिखा let y is equal to 20. Although these two are two different statements, but they have written on a single line number 10. So by using the sign of colon you can write two or more statements in a single line. पॉइंट नंबर 5, इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन. वो कहते हैं आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए बगैर यूज कर सकते हो. डिक्लेरेशन का मतलब होता था जो आपकी सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस की आप लैंग्वेज की अगर बात करते हो, तो उसके अंदर आपको अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करना पड़ता है, इनिशियलाइज भी करना पड़ता है. डिक्लेयर का मतलब होता है कि मेमोरी को बताना पड़ता है कि मैं एक वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, वाई है, जी, कोई भी वेरिएबल है, उसको मैं यूज करना चाहता हूँ. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखते हो इंट एक्स इंट वाई, ये इंटीजर इसकी टाइप है और ये मैं यूज करना चाहता हूँ. और इनिशियलाइजेशन होती है कि उसकी वैल्यू, जो आपने वेरिएबल यूज किया उसको आप कोई वैल्यू असाइन कर दो. तो ये दो चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन. तो वो कहते हैं यू कैन यूज अ वेरिएबल इन GW बेसिक विदाउट डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ही उसे यूज कर सकते हो. जैसे कि उसने यहाँ पर लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू 10. अब उसने एक्स को पहले डिक्लेयर नहीं किया, मेमोरी में बताया नहीं है कि मैंने एक्स यूज करना, उसने डायरेक्ट ही एक्स को यूज भी कर लिया और उसे वैल्यू भी असाइन कर दी है. Okay. Point number 6 is in a basic program, the physical appearance of the program statement does not matter. For example, in a program, line number 90 can appear before line number 60. However, the program statements will always execute according to the ascending order of the specified line numbers. Now they are saying that the physical appearance of the program statement does not matter. ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाइन नंबर 90 पहले लिख दिया और लाइन नंबर 60 बाद में लिख दिया तो आपका लाइन नंबर 90 पहले चल जाएगा. ऐसा नहीं होगा. और your all the program line statement will be executed according to the ascending order. लाइन नंबर 60 बेशक बाद में आपने लिखा हुआ है, but it will execute first, then line number 90 will execute, or whatsoever sequence you have followed in writing the program. So this was the basic structure of the program. 6 points हैं यहाँ पे structure of the basic program. It is very important long question as well. बहुत दफा board में आया हुआ है question. Next is character set of basic 2.5 topic. Character set of a language defines all characters which are valid to use in programs written in that language.
अब वो कहते हैं करेक्टर सेट की आपको हर लैंग्वेज में जरूरत पड़ती है। इंग्लिश लैंग्वेज की आप बात करते हो तो यू माइट यूज अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आप ये सारी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हो। उर्दू की बात करते हो तो उर्दू में अलिफ बे पे वाली लैंग्वेज आप सारे यूज कर रहे होते हो। तो ये सारा कुछ आप यूज कर रहे होते हो। सो इफ यू आर यूजिंग अ बेसिक लैंग्वेज, सो द बेसिक लैंग्वेज आल्सो कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। उसके अंदर दैट माइट बी अल्फाबेट्स, दैट माइट बी न्यूमेरिक, और दैट माइट बी सम स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेट्स भी आप यूज कर सकते हो, नंबर्स भी आप यूज कर सकते हो, और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो भी आप यूज कर सकते हो जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर। कुछ रूल्स उसने बताया कि इसके अंदर जो जो चीजें हम यूज करते हैं। नंबर वन इज द अल्फाबेट्स इंक्लूड अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। आप दो तरह से यूज कर सकते हो अल्फाबेट्स, अपर केस भी यूज कर सकते हो मतलब कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हो, और लोअर केस भी यूज कर सकते हो मतलब स्मॉल एबीसी, स्मॉल लेटर्स भी यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूड डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब जो नंबर्स आपने यूज करने हैं वो आपने 0 से 9 तक यूज कर सकते हो। थर्ड वन इज जीडब्ल्यू बेसिक कैरेक्टर सेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स। अब वो कहते हैं कि जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं वो कुछ उसने उसका टेबल यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया हुआ है कि ये हम कर सकते हैं। ब्लैंक यूज कर सकते हैं मतलब स्पेस यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू का साइन क्या करता है, आपके असाइनमेंट का सिंबल को डोनेट करता है। असाइनमेंट सिंबल का मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन करनी है या बताना है किसके इक्वल है तो उसके लिए आप इक्वल का साइन यूज कर सकते हो। प्लस का साइन यूज करते हो, प्लस का साइन आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में यूज करते हो, मतलब दो स्ट्रिंग्स को, दो अगर एबीसी के आपने वर्ड्स लिखे हैं मतलब अपना नाम लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उन दोनों को आपने मिलाना है तो आप प्लस का साइन यूज करोगे एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। इसको आगे हम डिटेल स्टडी भी करेंगे। Next is your minus sign, asterisk or multiplication, slash or division, caret exponential, left parenthesis, right parenthesis, percentage, number sign, dollar sign, exclamation sign, left bracket, right bracket, comma, double quotation, period, single quotation, semicolon, colon, ampersand sign, question mark. These are a few character set। ये कुछ character set उसने यहाँ पर आपको define किए हुए हैं, normally हम यही use करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सारे character set we can use in GW basic program। नेक्स्ट इज लेस देन, ग्रेटर देन, बैक स्लैश, ये कुछ साइंस हैं यहाँ पर, सिंबल्स उसने बताए हुए हैं, ये सारे आप यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट इज योर टॉपिक नंबर 2.6 दैट आर रिजर्व वर्ड्स। अब रिजर्व वर्ड्स आपके क्या होते हैं? Reserve words or keywords are the words which have predefined meaning in GW Basic. These have predefined uses and cannot be used or redefined for any other purpose in a basic program. Keywords cannot be used as variable names. Some of the keywords of Basic are if, else, then, while, etc. This is one of the most important short question of this chapter, that what are reserve words? Reserve words का दूसरा नाम है keywords. Reserve words को हम keywords भी कहते हैं। And what are the keywords or what are the reserved words? These are the words which have predefined meaning in basic। मतलब ये कि इनका मतलब GW basic के अंदर पहले से define कर दिया गया है। Once the manufacturer was making the software, उसने इन words को पहले से ही अपने software में include कर दिया। And these have predefined uses and these cannot be used or these cannot be redefined for any other purpose in GW basic। तो ये अगर once उसने डिफाइन कर दिया मेमोरी में या वंस उसने आपने सॉफ्टवेयर में डाल दिया कि ये रिजर्व वर्ड है, इसको आप और कहीं यूज नहीं कर सकते। डेली लाइफ की एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो कुछ सीट्स के ऊपर लिखा होता है रिजर्व, तो वो सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व हुई भी होती हैं, मतलब कुछ और लोगों के लिए वो सीट्स होती हैं, कुछ स्पेशल लोगों के लिए वो सीट्स होती हैं। सेम इसी तरह there are a few words in basic program that are being reserved। इन words को आप अपने special purpose के अलावा कहीं पर भी और use नहीं कर सकते। keywords cannot be used as variable names। अब जो ये words हैं इनको आप अपने variable के नामों में भी use नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप इन्हें लिख लो, जैसे हमने ऊपर example पढ़ी थी let x is equal to 10, तो x एक variable था, x is not a reserve word। तो उसके अलावा अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल उसने दिया इफ, एल्स, देन, वाइल, इनको मैं वेरिएबल के नेम्स में नहीं यूज कर सकती हूँ। ये इनका अपना एक अलग स्पेशल पर्पस है और ये उसी चीज के लिए यूज होते हैं। सम ऑफ द कीवर्ड्स यहाँ पर उसने बता दिया आपको, इफ होता है, एल्स है, देन है, वाइल है, नेक्स्ट है, फॉर है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका अपना एक स्पेशल पर्पस है एंड वी कैन नॉट यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस और वी कैन नॉट रीडिफाइन देम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Next is one of the most important
लॉन्ग क्वेश्चन that is of variables. अब variables basically आपके क्या हैं? What are the variables? Variables are named memory location. Variables are named memory location or memory cells which are used to store programs input data and its computational results during program execution. ये आपका variables का बहुत important long question है. इससे पहले एक और question आज हमने discuss किया, that was the structure of the basic program कि basic program का structure क्या है. And next long question is your variables. इसका question ऐसे आता है, what are variables? Write rules for naming variables in basic. So what are the variables? Basic definition of variables is variables are named memory location. मतलब memory location में एक value assign कर दी जाती है या एक name दे दिया जाता है memory के cells को which are used to store programs input data and its computational result during program execution. जो क्या करता है कि आपने अपने program में कोई अगर input को value assign करनी है, कोई data assign करना है या कुछ results आपने assign करने हैं, तो उनकी values को store करने के लिए आप variables use करते हो. ठीक है? As the name suggests, the value of a variable may change during the program execution. If a variable is assigned no value, the GW basic assumes the value of the variable to be 0 in case of numeric variables and null to string variables. अब वो कहते हैं कि अगर वेरिएबल्स को आप बेसिकली प्रोग्राम में यूज करते हो अपने वैल्यूज को असाइन करने के लिए, तो अगर आपने अपनी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो, कोई वैल्यू नहीं देते, कि आपने सपोज कर लिया कि एक वेरिएबल आपने एक्स ले लिया मगर आपने उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो GW बेसिक विल अज्यूम दैट द वैल्यू इज ऑफ 0 इन केस ऑफ न्यूमेरिक. अगर आप न्यूमेरिक वेरिएबल यूज कर रहे हो तो फिर वो अज्यूम कर लेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 है. अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग का मतलब होता है अल्फाबेट्स आप अगर साथ यूज कर रहे हो, अल्फाबेटिकल चीज आप यूज कर रहे हो, देन इट विल अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इज नल. मतलब उसकी वैल्यू जो है वो नल है. आगे स्ट्रिंग वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल, ये सारी डिटेल डिस्कशन आगे है चैप्टर में. ओके, नेक्स्ट इज रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. अब एक दफा मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ. वन ऑफ द एग्जांपल वी हैव स्टडीड बिफोर, दिस वन. ये जो आपकी एग्जाम्पल थी ना, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स एटसेट्रा. सो यू कैन सी ओवर हियर लेट x इज इक्वल टू 10. अब ये जो लेट x इज इक्वल टू 10 उसने लिया है ना यहाँ पर, दिस इज योर वेरिएबल. x जो है ये आपका वेरिएबल है और वैल्यू उसने क्या साइन कर दी है, 10. और एक और उसने वेरिएबल लिया y इज इक्वल टू 20. अब ये y क्या है, ये भी एक वेरिएबल आ गया आपका. तो ये जो x है और y है ये दोनों क्या हैं, आपके वेरिएबल्स हैं. ओके, moving towards the required topic. Yes, rules for naming variables. Each variable that is used in a basic program must have a name. हर वेरिएबल जो कि आप बेसिक प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो, that must have a name. कोई ना कोई नाम उसका होना चाहिए. That might be XYZ, that might be ABC, और आप कुछ भी आप उससे सपोज कर सकते हो. The name of a variable is used for further references made to it. Why the name of the variable is important? Because it is used to make references. अगर आपने different references use करने हैं, मतलब उस वेरिएबल को लिंक करना है किसी और वेरिएबल के साथ, then you needs a name of the variable. The value of the variable is accessed by its name. तो जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो उसके नेम से एक्सेस की जाती है. जैसे कि मैंने पहले दिखाया आपको, let x is equal to 10, तो हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू जो है that is 10. So the name of the variable is very important. In GW Basic, there are some rules for naming variables. These are, now there are certain rules to solve a problem or for using variables. There are different rules for using the variables in your programs. So these are, number one is, in GW Basic, a variable name cannot be more than 40 characters long. वो कहते हैं कि GW बेसिक में अगर आपने कोई वेरिएबल यूज करना है तो उसका जो नाम है वो 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. So the name of the variable cannot be more than 40 characters. Okay. Second one is, the variable name may contain alphabets both uppercase and lowercase. वो कहते हैं वेरिएबल का जो नाम है वो किस तरह क्या क्या चीजें आप उसमें यूज कर सकते हैं,
आप you may use alphabets में you may use upper case alphabet और you may use lower case alphabet, बड़ी ABC एंड छोटी दोनों आप यूज कर सकते हो. नंबर्स यूज कर सकते हो 0 to 9 जैसे उसने स्ट्रक्चर में पहले भी बताया था, एंड द डेसिमल पॉइंट डॉट ये भी आप यूज कर सकते हो वेरिएबल का नाम यूज लिखने में. Third point is the first character in the variable name must be an alphabet. So the first character, if you are writing a variable, if you are using any variable, so then the first character of the variable name must be an alphabet. ये rule है इसके. अगर आप उसे alphabet नहीं लिखोगे, अगर आप उसे digit कर दोगे ना, 1 कर दोगे, 1 A B इस तरह करोगे, that would not, the system will not recognize it और वहाँ आपको error message display होने लग जाएगा. Number 4 is reserved words cannot be used as variable names. रिजर्व वर्ड्स आप अपने वेरिएबल के नेम्स में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था दैट रिजर्व वर्ड्स आर द की वर्ड्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस. सो रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स. नंबर 5 इज ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स. आप इसके अंदर ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है. Number 6, however, the last character of the variable name may be a special type declaration character indicating the type of the variable. वो कहते हैं जो आपका वेरिएबल का लास्ट कैरेक्टर होता है, ये इसके अंदर आपको उसकी टाइप स्पेसिफाई करनी होती है कि either the variable you are using is of a numeric or is of numeric type variable or it is of string type variable. कौन सी टाइप आप वेरिएबल की यूज कर रहे हो, तो जो लास्ट कैरेक्टर होता है आपका वो इंडिकेट कर रहा होता है. If type of the variable is not specified, it is assumed as a real type variable. वो कहते हैं कि आपने अगर टाइप स्पेसिफाई नहीं करी तो वो रियल टाइप कंसीडर कर दी जाएगी जो कि नॉर्मली सिस्टम में यूज की जाती है. ये आगे इसकी टाइप्स भी डिटेल हैं. So these were some of the rules of naming variables in basic. So you have to write this question in your registers that what are variables, write the rules for naming variables. इसमें variables की आपने definition लिखनी है and after that you have to write all these 6 points. Okay. अच्छा, टाइप डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम. Next is type declaration characters. In GW Basic, type declaration characters represents the type of variable. अब वो कहते हैं कि type of variable बताता है. आखिरी character उसने बताया last rule. They have tell us that you have to write the type of the variable. So there are different types of variable type declaration characters recognized in GW Basic. First is dollar sign. अगर आप लिखोगे आखिर में तो वो recognize करेगा कि ये string type का variable है. अगर आप परसेंटेज का साइन यूज करोगे तो वो रिकॉग्नाइज करेगा ये इंटीजर वेरिएबल है, मतलब इंट टाइप है इसकी, 1 2 3 4 डिजिट्स आ सकते हैं इसमें. अगर आप इसके अंदर एक्सक्लेमेशन का साइन यूज करोगे तो वो एग्ज्यूम कर लेगा कि ये सिंगल प्रेसिजन है. अगर नंबर साइन यूज करोगे तो वो एज्यूम कर लेगा ये डबल प्रेसिजन है. अब आगे उसने एग्जांपल भी देकर आपको दिखा दिया कि फॉर एग्जांपल यू हैव राइट अ नेम. नेम आपने एक वेरिएबल लिया और उसके आखिर में आपने डॉलर का साइन लगा दिया, तो वो मेमोरी में उसकी कितनी लेंथ आएगी, स्ट्रिंग लेंथ उसकी आएगी. मेमोरी स्ट्रिंग टाइप का वो वेरिएबल कंसीडर होगा. एक वेरिएबल लिया मार्क्स, उसके आगे डॉलर साइन लगा दिया तो वो 2 बाइट्स लेगा बिकॉज दे हैव अज्यूम्ड दैट इट इज ऑफ इंटीजर टाइप. एवरेज है और एरिया है 4 बाइट्स और 8 बाइट्स ले रहे हैं. Okay, so it's all enough for today. In next class we will study from the types of variable ताकि आप variables का और clear हो जाएगी understanding that what are the basic types of variables.